the main part of the HTML is the structure. So let me uh, show you the structure of the HTML. So I am going to create a folder, and inside it I am creating a file. Okay, so HTML is a consist of basic elements that we are going to use. So this is our HTML file, and inside it firstly we have to declare our HTML doc type, because HTML currently HTML has two versions. One is HTML4 and another one is HTML5. So HTML5 has a bit more feature than HTML4. So we have to declare the version of the HTML. So so we have to use this command, this line, uh, angular brackets. These brackets are called angular brackets, and this is exclamation mark, and this is doc type and HTML. So with this line we can declare the version of our HTML. So now I have declared that this file is of my HTML version 5. If I remove this, then this is automatically defined as HTML version 4. So we have defined HTML version 5. Now inside, after that we have to define a main element. Okay. Okay, so inside this main element, every element is going to be the child of this element. So this is HTML element, and this is the parent element, and everything goes inside this element. So after that we have to define two elements or two tags. So one is head, and another one is body. So this one is head and this one is body. So inside the head we have to provide some information, like as you have seen. So this is the title bar, this is the icon. We can say this is a fav icon. So this is fav icon, this is the title and the description of the website. So everything goes inside the head, and we can use different CSS and link those CSS in the head element. And inside the body, everything that you are able to see on this page, so that come inside the body element. So this come inside the body element. So just provide the title. So to provide the title, we have a element, we have a tag title, and inside this title tag we have to provide the title of our page. Like I am going to provide the title as my page, sorry, my HTML page. And inside the body there are several elements that you can find on this website. Firstly I am going to use heading. Okay, so this is heading, and heading are of six types. So this is h1, which is bigger than the biggest than the rest. This is h2, this is h3, h4, h5 and h6. So they ranges from h1 to h6. So just provide firstly h1. Okay, then inside it write heading 1. Now try to open it in the browser. So I'm going to open it inside my Chrome. And as you can see, so this is my heading 1 and this is my title, my HTML page. So let me provide some other heading types. So just provide s3 and heading 3. Now you can see this heading is a bit smaller than this heading. So okay, now try to just copy paste all the headings and let's see what will happen. So as you can see, now we have all six kind of headings, but we can also manipulate them with the help of CSS. We will do it later.
but firstly we are learning the tags and the elements of HTML. So this is about the headings. Now come to paragraphs. So suppose we have to provide a paragraph about something, like about a page, about a scenery. As you can see, this is a paragraph. So this is a paragraph about the p element. So to do so, we have a tag with p. Okay, so just provide a p tag, and inside it just type this is a paragraph, and I am just copying it, and this is my paragraph 1 and this is my paragraph 2. Now I will show you what is the difference between inline tag, block tag and inline tags. So you can see this is my paragraph 1, and even after I have space here, but my paragraph 2 goes inside my paragraph 1, goes a bit down inside behind my sorry. So my paragraph 2 is lies downside from my paragraph 1. So this is because of the p tag or the heading tags are the block tags. Even I have space, I have lots of space here, but this space is not going to share with other elements. So these kind of tag are called block tag. And there is another tag which is span. So span is basically a inline tag, and just provide some text. So this is a span tag. Okay, and this is span tag 2. Now let's check what will happen. So now you can see, now we are able to share the space with other tags. So these tags are called inline tags. So this is the difference between inline tags and block tag. And we can also check if a tag is inline or block. So just go to inspect after right clicking on the page, and just click on hover on any element. Like if I am hovering my h1, then you can see this goes from from left corner to right corner. So this adapt hold the space of the line. But if I am hovering on span tag, so as you can see, span is only adapting the space which is required. This is not going to adapt all the line, all the line of space of the line. So this is about the inline tags and block tags. Now come to some other elements, which is style tag. So style tag is used to define CSS. So CSS can be defined in three manners. One is inline CSS, another one is in-file or internal CSS, and another one is external CSS. So what is the difference between among three? So the difference is with the help of inline CSS, we can define the styling for a specific tag. Okay, but if we want to style our whole page, but only that page, I don't want that styling to my other page, but I want only style my this my HTML page only. Then in this case, I am going to use internal CSS. But if I want to make a common styling for my whole the website, then I will use external CSS. Now firstly come to inline CSS. So how can we use inline CSS? To do so, we have to provide a attribute. So this is style is the attribute, style is not a tag. So like you will say, what is the difference between the tags and attributes? So tags are wrapped with these two angular brackets, but inside these brackets we have to provide some properties. So these properties are called attributes. So just provide there is a property, CSS property, that is color. So with this way we can change the color. So just provide the color red and just save it. Now refresh our page. Now you can see my heading one is now of red color.
and I can also change it like just to uh, display, and after display we have lots of property. One is block, content, flex is very helpful. I will explain what is the flex, but now we will focus on block and inline. So just provide inline, okay, and now check what will happen. And if I am hovering my h1, now this is not going to adapt all the space of my line. This is only adapting the space which is required, the space which is adapted by the text. So now I have converted my block tag. H1 is actually a block tag which I have already explained you. Now yes, okay. So जो H1 टैग है, दिस वन, तो ये पहले क्या था, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, जो पहले ये ब्लॉक टैग था और देन वी हैव कन्वर्टेड इन इनलाइन टैग। तो अब हमने क्या किया, एक सीएसएस प्रॉपर्टी डिस्प्ले का यूज करके हमने इसको इनलाइन टैग में कन्वर्ट कर दिया। देन there are lots of properties. Just suppose I want to change the color of my background, so इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट अपने बॉडी को देंगे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हमारे पूरे बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो इसके लिए क्या देना पड़ेगा, पूरे बॉडी को बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। तो स्टाइल में देयर इज अ प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर, इसके अंदर हम कलर दे देते हैं सपोज ब्लू। ना जितनी भी हमारी बॉडी की हाइट है वो पूरा का पूरा कलर अपना ब्लू हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर। सो विद दिस वे वी कैन चेंज द background color of our HTML. Now come to some other properties. As I have already discussed the color, to change the font color of our text. इसके अलावा ये होती है font family. So with this way we can change the font style of our HTML of our text. So as you have seen, there are lots of style: Verdana, sans serif, Courier, and you can find more on Google Fonts. So Google Fonts पर काफ़ी सारी फॉन्ट स्टाइल मिल जाएंगी, यू कैन यूज़ इट। इसके लिए सिंपली हमें उसकी स्टाइल सीट को अपने HTML में इंक्लूड करना पड़ेगा, देन वी कैन यूज़ दिस फॉन्ट फैमिली एट्रीब्यूट, फॉन्ट फैमिली स्टाइल टू चेंज द फॉन्ट ऑफ आवर टेक्स्ट। इसके अलावा हमारे पास एक फॉन्ट साइज है। सपोज मेरे को जो अपना H1 है उसकी मेरे को स्टाइलिंग चेंज करनी है, मुझे इसको थोड़ा और लार्जर करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी डालूंगा, CSS प्रॉपर्टी, और इसमें मैं इसको सपोज 100 पिक्सल दे दूंगा। देन यू कैन सी अब ये थोड़ा सा और लार्जर हो गया है, अब ये टोटली 100 पिक्सल साइज हो गया इसका। एंड देयर इज अ टेक्स्ट अलाइनमेंट। लेकिन टेक्स्ट अलाइनमेंट किस तरीके से काम करता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। टेक्स्ट अलाइनमेंट हम पहले तो एक स्पैन टैग को देते हैं और फिर हम अपने पी टैग को देते हैं। सो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सो इसको हमने अपने टैग स्पैन टैग को दे दिया। नाउ कम टू पी टैग, बट वी विल सी कि हमारा केवल पी टैग ही अलाइन हो रहा है, हमारा स्पैन टैग अलाइन नहीं हो रहा। दिस इज बिकॉज क्योंकि हमारा जो पी टैग है उसने पूरा का पूरा लाइन एरिया ले रखा था, जो पूरा का पूरा हमारा स्पेस है लाइन का, वो पूरा का पूरा स्पेस ले रखा था। दैट्स वाई जब उसने पूरा स्पेस ले रखा था तो अकॉर्डिंगली उसने खुद को एडजस्ट कर लिया सेंटर के लिए। लेकिन स्पैन ने तो पूरा स्पेस लिया ही नहीं था, उसके पास पहले से ही उतना स्पेस था जितना उसे नीडेड था। दैट्स वाई जो सेंटर वाली प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट लाइन सेंटर वाली, वो इनलाइन जो टैग्स होते हैं, इनलाइन एलिमेंट होते हैं, उनके लिए काम नहीं करती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सबसे पहले डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा जो स्पैन इनलाइन है उसको हम सिंपली डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे एंड देन वी विल रिफ्रेश इट अगेन। सो नाउ यू कैन सी अब हमारा जो पैराग्राफ टैग है और जो अपना स्पैन टैग है अब दोनों सेंटर में आ गए। यानी कि जो टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी है वो करेंगे, सबसे पहले एक डिव क्रिएट कर लेते हैं और डिव में हम अपने इसमें अब हम क्या करेंगे, अपनी एक इंटरनल CSS यूज करेंगे। तो इंटरनल CSS के लिए हमारे पास एक
स्टाइल टैग है जो कि हमें हेड के अंदर डिफाइन करना पड़ता है। और इसके अंदर हमारे पास दो, एक तो होते हैं क्लासेस, एक होते हैं आईडीज होती हैं। तो हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, सूडो क्लासेस भी होती हैं, बट अभी हम क्लासेस यूज करेंगे। तो क्लासेस डिफाइन करने के लिए हमें डॉट लगाना पड़ेगा और फिर उस क्लास का नाम देना पड़ेगा। तो सपोज नाम देते हैं कंटेनर, और इसमें हम क्लास में भी डाल देते हैं कंटेनर। ओके, अब इस div के अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स प्रोवाइड कराता हूँ। सपोज दैट इज h1। h1 इसमें दे देते हैं दिस इज द कंटेनर। इंस्टेड ऑफ h1 जस्ट प्रोवाइड s3। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, यू विल नॉट सी एनी बिग डिफरेंस। तो सिंपली क्या है, दिस इज कंटेनर मेरा शो हो रहा है, सब कुछ ठीक है। इससे बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, या फिर ग्रे कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर। इसके बाद जो मेरे कंटेनर के अंदर जो मेरी क्लास ली है मैंने कंटेनर, उसको मैं कुछ प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराऊंगा। सो वन इज बॉक्स साइजिंग। तो बॉक्स साइजिंग का क्या काम होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे कि अगर मैं पैडिंग और हाइट, लेट मी शो यू द पैडिंग फर्स्ट। सपोज इसको पैडिंग दे दी मैंने 20 पिक्सल्स की। देन व्हाट विल हैपन, इस पर मैं जब होवर करूंगा तो क्या होगा, इधर एक बॉक्स टाइप का मेरे को शो होगा। और इसमें मैं देख सकता हूँ कि मेरी जो पैडिंग है, इसकी विड्थ है, हाइट है, वो सब मैं देख सकता हूँ। अब मेरी पैडिंग से क्या हुआ, कैन यू सी द ग्रीन स्पेस। जो मेरा ये div क्लास है, ये मेरा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन मेरा टेक्स्ट जो आ रहा है वो इतना स्पेस छोड़ के आ रहा है। सो व्हाट आई डिड, मैंने एक्चुअली जो 10 पिक्सल्स है, 10 पिक्सल्स का मैंने इसको एक पैडिंग, सॉरी नॉट 10 पिक्सल, 20 पिक्सल्स की मैंने इसको पैडिंग प्रोवाइड करा दी। और मैंने सिर्फ खाली 20 पिक्सल डाला है, तो बाय डिफॉल्ट जो मेरी पैडिंग होगी वो चारों तरफ से हो जाएगी, मतलब अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। तो चारों तरफ से मेरी 20 पिक्सल्स की पैडिंग हो गई। देन दिस इज द width of my text. So this is my h1 element inside this div। एंड अगर मैं इसमें बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स डाल देता हूँ, अंतर कुछ नहीं होगा। लेकिन अब मैं अगर इसकी जो जो इसकी विड्थ और हाइट है उसमें अगर मैं देखूंगा, तो मेरी जो पैडिंग है वो ऑटोमेटिकली इसमें कैलकुलेटेड हो जाएगी। मतलब अगर इसकी सपोज जो मेरा h3 है उसको मैं स्टाइल दे देता हूँ विड्थ 100%। तो अब क्या होगा कि जो इसकी पैडिंग और जो इसकी जो मार्जिन वगैरह है, उन सब में इसकी जो विड्थ और हाइट है उसमें वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। मतलब बॉक्स साइजिंग में क्या होगा कि मेरी जो बाय डिफॉल्ट पैडिंग है वो उसकी हाइट में भी ऐड अप होके आ जाएगी। आई थिंक इसका थोड़ा और डीपली एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन लेटर, नो इशू, क्योंकि खाली दो टैग से ये क्लियर नहीं है। इसके बाद अगर हम आते हैं अपने डिस्प्ले फ्लैक्स वाली प्रॉपर्टी पर। सो डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स से क्या होता है कि हम जैसे कि मैंने अपने कंटेनर को एक प्रॉपर्टी दे दी, CSS प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लैक्स। और ये देने के बाद मैं इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर मेरा h3 है, अगर एक और डिव है सपोज इसके अंदर, और उस डिव के अंदर भी मेरा सपोज s2 है, और इसको मैं दे देता हूँ सपोज दिस इज h2। तो अब मैं इन सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे कंटेनर के अंदर, उन सबको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स दे दिया, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेरे जो है सेंटर में आ जाएं। सो मैं क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर कर दूंगा। एंड नाउ यू विल सी जितने भी मेरे जो एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिक सेंटर में आ गए। अगर मैं ये नहीं देता, सपोज इफ आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड दिस सेंटर, तो क्या होगा, लेट मी सी, ओके, अगर मैं इससे फ्लैक्स हटा देता हूँ,
तो जो मेरे जो एलिमेंट टैग हैं वो बाय डिफॉल्ट एक तरीके से कॉलम वाइज रिप्रेजेंट होंगे, लेकिन अगर मैं इसमें डिस्प्ले फ्लैग्स दे दिया तो डिस्प्ले फ्लैग्स में दो चीज़ें होती हैं, ये हमारी बाय डिफॉल्ट एक तो एक्सेस, एक एक्स एक्सेस होती है, एक वाई एक्सेस होती है, यानी कि एक प्राइमरी एक्सेस होती है, एक सेकेंडरी एक्सेस होती है। जैसे ही मैं डिस्प्ले फ्लैग्स देता हूँ ना, तो वो जो मेरी एक्सेस है बाय डिफॉल्ट मेरी जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है वो मेरी प्राइमरी एक्सेस हो जाती है, और जो वर्टिकल एक्सेस है वो मेरी सेकेंडरी एक्सेस हो जाती है। ठीक है, अगर मुझे एक्सेस चेंज करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लैक्स डायरेक्शन डालना पड़ेगा। इसमें मैं डाल सकता हूँ कॉलम या फिर कॉलम रिवर्स। सपोज मैंने कॉलम रिवर्स डाला तो क्या होगा, जो मेरे एलिमेंट नीचे हैं वो ऊपर पहुंच जाएंगे, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे, जैसे कि यू कैन सी। सो दिस इज एस टू, दिस इज द कंटेनर। लेकिन हमारी एस टी एम एल में क्या था, मेरा जो दिस इज द कंटेनर वो ऊपर था और दिस इज एस टू नीचे था। तो इससे मैं अपने सी एस एस से ही एस टी एम एल को मैनिपुलेट कर पा रहा हूँ, फ्लैक्स बॉक्स की हेल्प से, जो फ्लैक्स प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से मैं इसमें डाल सकता हूँ रो, रो या रो रिवर्स। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो फ्लैक्स की डायरेक्शन होती है वो रो होती है, लेकिन हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे को कॉलम में सारे एलिमेंट चाहिए या फिर मुझे रो में सारे एलिमेंट चाहिए तो मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ अकॉर्डिंगली। तो सपोज इसको मैंने रो रिवर्स कर दिया। अब क्या होगा कि जो मेरा दिस इज एच टू है वो मेरा पहले आ रहा है और दिस इज कंटेनर बाद में आ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लैक्स। एंड now come to some other topics. So now come to links. लिंक्स कैसे क्रिएट करने हैं? लिंक के लिए क्या होता है, हमारे पास एक ए टैग होता है और इस टैग के अंदर हमें उसका अपने लिंक का यूआरएल डालना पड़ता है। सपोज मेरे को एक लिंक चाहिए गूगल के लिए, तो मैं क्या करूँगा, एक ए टैग लूँगा और इसके एच में डाल दूंगा गूगल का यूआरएल। इसमें डाल दिया। ओके, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे को गूगल पे रिडायरेक्ट कर देगा। दिस इज ऑल अबाउट द लिंक। और इसमें एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट। तो टारगेट में अगर मैं अंडर स्कोर ब्लैंक डाल दूंगा तो क्या होगा, मेरा एक नया टैब ओपन आ जाएगा। टैग जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, पहले क्या हो रहा था, मेरा इसी पेज को वो गूगल पे रिडायरेक्ट कर रहा था, फिर क्या होगा, एक नया पेज मेरा गूगल पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। सो इसी तरीके से हम पेज को लिंक कर सकते हैं ए टैग की हेल्प से। एंड these this imd tag is used to display or render the images। इसको क्विकली दिखा देते हैं क्योंकि इसमें इमेज का यूआरएल डालना पड़ेगा। तो सिंपली क्या है, इसमें हम img टैग लेते हैं और इसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता। मतलब दो तरीके से टैग होते हैं, एक होते हैं सिंगुलर टैग और एक होते हैं पेयर टैग और कपल टैग। तो सिंपली क्या है, जैसे कि S2 है तो S2 का एक स्टार्टिंग टैग है और एक एंडिंग टैग है, तो ये हमारे हो गए पेयर टैग। लेकिन IMG का कोई भी एंडिंग टैग नहीं है, तो ये क्या हो गई, ये हमारे हो गए सिंगुलर टैग। सो IMG हमारा एक सिंगुलर टैग है और इसमें हमें प्रॉपर्टी डालनी होती है SRC। SRC में क्या होता है, अपनी इमेज का पाथ होता है कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। और ऑल्ट में क्या होता है कि अगर हमें हमारी इमेज नहीं मिल पाती है, सपोज मेरी इमेज, इसको थोड़ा एडिट कर देते हैं। सपोज मेरी इमेज ये वाली है ही नहीं, तो क्या करेगा वो, मेरे को एक इस तरीके का एक ब्रोकन इमेज दे देगा। जैसे कि मेरी इमेज ब्रोकन ब्रोकन है और मेरे को जो ऑल्ट में जो मैंने डाला है ना वो टेक्स्ट मेरे को शो कर देगा। और इसके बाद दिस इज द विड्थ एंड द हाइट फॉर माई इमेज। और जो ALT है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लाइक मोस्ट ऑफ पीपल लीव इट बिकॉज उन्हें लगता है ये केवल ऑप्शनल है, इसका इतना यूज़ नहीं है। लेकिन ये जो वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसमें ALT का बहुत ही ज़्यादा हेल्प यूज़ होता है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमारी जो इमेज की इंडेक्सिंग होती है, क्योंकि गूगल को नहीं पता कि इमेज किससे रिलेटेड है, तो हमें ऑल्ट में डालना चाहिए। इसलिए दिस इज दिस इज बेस्ट प्रैक्टिस अगर हम ऑल्ट में टेक्स्ट भी डालते हैं तो। दिस इज ऑल अबाउट इमेजेस। नाउ कम टू टेबल्स। सो टेबल्स में सिंपली एक मेन टैग होता है। हाँ, ये इट विल बी मोर बेटर। ओके,
सो बूटस्ट्रैप में क्या होता है, जैसे हम अपनी जितनी भी स्टाइलिंग है उसको अलग अलग से खुद से खुद डिफाइन करते हैं। सपोज हमारे जो बटन्स हैं उनका क्या कलर रहेगा, हमारा टेक्स्ट कैसा शो होगा, या फिर जो भी हमारे रेडियो बटन्स है उसको हमें खुद से स्टाइल करना पड़ता है। लेकिन बूटस्ट्रैप क्या है, काइंड ऑफ CSS फ्रेमवर्क। सो इसकी हेल्प से हमें केवल इसको बस इम्प्लीमेंट करना होता है, हमें कुछ नहीं सोचना। हमें जैसे कि हमें अपने जो टेक्स्ट है, सपोज मेरे को स्टाइलिंग करनी है कि सारे के सारे टेक्स्ट मेरे को सेंटर में दिखें, या फिर मुझे चाहिए कि इनका जो बैकग्राउंड कलर है प्राइमरी है। इसमें काफ़ी टाइप के बैकग्राउंड कलर्स भी होते हैं बूटस्ट्रैप में, बटन्स कलर होते हैं। तो इन सब की स्टाइलिंग हमें बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिक प्रोवाइड कराता है। नाउ कम टू टेबल्स। सो बेसिक HTML टेबल एकदम बेसिक स्ट्रक्चर दिखता है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं होता। अगर मैं इसमें भी दिखाऊं, इफ आई शो यू इन दिस, वेयर इज इट, और इसमें से ये जो स्टाइल है ना, स्टाइलिंग वाला पार्ट हटा दूं मैं और फिर मैं इसे रन करूं, सो दिस इज द टेबल, HTML टेबल जो हमें प्रोवाइड कराता है HTML। दिस इज वेरी बेसिक। बट बूटस्ट्रैप में क्या होता है, बूटस्ट्रैप हमें ये जो है पहले से ही खुद से ही स्टाइल करके देता है, हमें कुछ नहीं करना। बस CSS को अपनी HTML से लिंक करना है, एक CDN मिलता है विच इज URL, एक काइंड ऑफ URL, बस उसको लिंक करना है अपने HTML में, बस उसका URL देना है। Okay, so as you can see, this is the style for, yes, yes, we will provide you the video. Now to tables. So as you can see, there are lots of styling in tables. एक हमने ऊपर ये देख लिया, एंड दिस वन फॉर ब्लैक बैकग्राउंड, एंड इसके लिए जो हमारा जो हेडर है वो ब्लैक है, बाकी का इस काइंड ऑफ ग्रे कलर। सो बूटस्ट्रैप में पहले से ही काफ़ी सारी स्टाइलिंग होती हैं, और हमें मतलब इतना स्टाइलिंग पर हम अपना इतना फोकस नहीं करते। हमारा मेन फोकस होता है फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, उसके लॉजिक पर। तो इसकी इसलिए हम जो है बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हैं। इसका मतलब एक तो स्टैंडर्ड डिफाइन हो जाता है, मतलब हमारा ये नहीं कन्फ्यूजन नहीं रहती है कि ये वाला क्लास हमने इसमें इस तरीके से डिफाइन किया, इसमें किस नाम से होगा। मतलब एक स्टैंडर्ड डिफाइन होता है और चीज़ें काफ़ी फास्टली हो जाती हैं, क्योंकि हम केवल टैग यूज़ करते जा रहे हैं, उनमें क्लासेस देते जा रहे हैं, हमें उन्हें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कम टू हम अब इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली एक CDN है, हम CDN का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। सो जस्ट इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं अपना स्टाइलिंग हटा देता हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज़ ओनली बूटस्ट्रैप, और इसमें मैंने अपना ये लिंक प्रोवाइड करा दी CDN की। नाउ कम टू दिस जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट मोस्ट ऑफ केसेस में नीडेड नहीं होती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें थोड़ा बहुत एनिमेशन होता है, और उसको जैसे मॉडल्स वगैरह होते हैं तो उसको हैंडल करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट ऐड करनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट अगर लास्ट में ऐड करेंगे दैट विल बी मोर गुड। क्या होगा कि अगर हम हेड में ऐड कर देंगे अपनी जावास्क्रिप्ट भी, तो इससे क्या होगा, हमारे पेज का जो लोडिंग टाइम है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, पहले हमारे एलिमेंट्स शो हो जाएंगे, उसके बाद हमारी जावास्क्रिप्ट लोड होगी। तो जावास्क्रिप्ट को इसलिए ऐड में ऐड करते हैं, बॉडी के एंड में। एंड अब हमारे मतलब बूटस्ट्रैप जो है अपना सेटअप हो गया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली सपोज मेरे को ये वाली टेबल चाहिए अपने HTML में, दिस वन, आई वांट दिस। मैंने क्या किया, सिंपली इसको इसका जो आया, जो जो टैग्स हैं जो भी है उसको मैंने कॉपी किया और अपने पेज को लोड कर देते हैं। एज यू कैन सी, थोड़ा बैकग्राउंड कलर इससे हटा देते हैं क्योंकि ये ग्रे कलर। ओके, सो अब ये बिल्कुल जैसा टेबल इधर था वो पूरा का पूरा टेबल एज यू कैन सी हियर। सो अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, अपने हिसाब से जो भी हमें नीड है, अगर इसमें और भी जो है रोज मेरे को ऐड करनी है और कॉलम्स ऐड करने हैं। सपोज मेरे को एक और
कॉलम ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपना एक और कॉलम ऐड कर दूंगा। अकॉर्डिंगली मैं उसी के अकॉर्डिंग अपने रोज में भी चेंज कर दूंगा। सो कॉल 1। सो मैंने क्या किया, अपना एक और कॉलम ऐड कर दिया। सिंपली इसी तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं इसमें। हमें मतलब एक यस, कम टू द स्लैक प्रोजेक्ट, दैट विल बी मोर गुड। ओके, सो दिस इज़ अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन मर्न स्टैक। सो इसमें सिंपली जो डेटाबेस है वो हम मोंगो डीबी यूज़ कर रहे हैं। बैकएंड के लिए हम एक्सप्रेस और नोड एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हैं। और दिस इज़ द रिएक्ट। ओके, इसको एज यू कैन सी दिस पेज इज यूजिंग द डेवलपमेंट बिल्ड ऑफ रिएक्ट। तो दिस जो ये वेब पेज है ये सिंपली रिएक्ट पर डेवलप्ड है। अब रिएक्ट में और नॉर्मल वेब पेज में क्या डिफरेंस है? सो इसमें क्या है कि ये जो है अभी जो तुम लोग देख रहे हो, दिस इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मल जो पीएचपी वेबसाइट होती हैं या फिर अलग वेबसाइट होती हैं, उसमें क्या होता है कि जब भी हम एक नए टैब पर क्लिक करते हैं, कोई नए लिंक पर क्लिक करते हैं, तो हमारे एक नया पेज रेंडर होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो पेज है वो सेम ही है। जैसे सपोज जो मेरा पेज है वो मेरा एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज है, और उस पेज के एलिमेंट्स को मैं अलग अलग टाइम पर, मतलब अलग अलग लिंक पर जो है चेंज कर रहा हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंगल पेज एप्लीकेशन। जैसे सभी लोगों ने सुना होगा एसपीए के बारे में, सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो उसमें यही होता है, हमारा जो पेज है ना वो एक ही बार रेंडर होता है, और हम उसी पेज के एलिमेंट्स को, जो हमारा जो एच टी एम एल है, उसको हम चेंज करते हैं, हम पेज को चेंज नहीं करते। सो इसमें क्या होता है कि हमारी जो रेंडरिंग है वो फास्ट होती है, मतलब चीज़ों को लोड होने में टाइम नहीं लगता, और जो हमारी वेबसाइट है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है। एंड दिस इज़ अ रियल टाइम वेबसाइट। जैसे कि ये एक पूरी तरह स्लैक का क्लोन है। और इसमें मैंने क्या किया, लेट मी एक्सप्लेन। जो भी मेरे पेज पर जो कुछ भी रेंडर हो रहा है ना, उसको मैंने डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। जैसे कि मेरा ये है, ठीक है। इसमें पहला मेरा हेडिंग हो गया, दिस इज माय प्रोफाइल, जो भी मेरे प्रोफाइल के लिए है। ये मेरे जितने भी जिन चैनल्स को मैं स्टार करूंगा या फिर फेवरेट में डालूंगा, वो सब इधर शो होंगे। एंड इधर वो वाले चैनल हैं जो अब तक बने हुए हैं। अब इसमें क्या किया मैंने, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम है। मैंने क्या किया कि मैंने केवल ये वाली जो पेज है, जैसे हैशटैग माई चैनल है, तो मैंने इसको शो करने के लिए एक कंपोनेंट बना दिया। अब उसी कंपोनेंट का मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, मैं इधर भी यूज कर रहा हूँ, मैं इधर रिएक्ट में भी यूज कर रहा हूँ, और इधर हैशटैग माई चैनल में भी यूज कर रहा हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीयूजेबिलिटी। तो इससे हमारा टाइम बचेगा, हमें चीजें केवल एक बार करने की जरूरत है, और फिर हम उसका बार बार यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल कंसेप्ट बिहाइंड द रिएक्ट। एंड if I come to this website, Slack clone application, तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जिसमें ऑथेंटिकेशन आता है। जैसे लॉगिन सिस्टम जो होता है, लॉग इन लॉग आउट। लेट मी शो यू। आई कैन लॉग आउट। सो मैं सिंपली लॉग आउट कर सकता हूँ, दिस इज़ वेरी क्विक। मतलब मैंने सिर्फ लॉग आउट पे क्लिक किया और सिंपली लॉग आउट हो गया, मतलब कोई लोडिंग नहीं, कुछ नहीं। तो इससे मतलब जो हमारी वेबसाइट है वो काफ़ी क्विक हो जाती है, काफ़ी फास्ट हो जाती है, इतनी हैवी लोडिंग नहीं होती इस पर। अगर मैं सिंपली लॉग इन करता हूँ, so as you can see this loading button, or now I am logged in.
तो हम ये जो है ऑथेंटिकेशन वाला इसमें है। अगर मैं इसमें नए नए चैनल्स क्रिएट कर सकता हूँ, सपोज मेरे को एक और नया चैनल क्रिएट करना है, दिस इज़ फॉर जावास्क्रिप्ट, और मैंने क्या किया, एक नया चैनल ऐड कर दिया। सो मेरा चैनल तुरंत रेंडर हो गया, बस मैंने ऐड किया। और इफ़ आई एम गोइंग टू सेंड अ मैसेज हाई, और ये दूसरे यूजर्स को भी जो है शो होगा। अगर मैं एक और अपना ब्राउज़र ओपन कर लूँ इनकॉग्निटो में और दूसरे अकाउंट से लॉगिन करूँ, तो रियल टाइम में मेरे को यही मैसेज दूसरे यूज़र के लिए भी शो होंगे। सो इसमें क्या होगा कि इसमें हम बिहाइंड द सीन सॉकेट सर्वर का यूज़ कर रहे हैं, जो कि रियल टाइम सर्वर होता है। जैसे चैटिंग वगैरह के लिए हम नॉर्मल सर्वर यूज़ नहीं करते, इसमें यूज़ करते हैं हम सॉकेट सर्वर और रियल टाइम सर्वर। इसमें क्या होता है कि अगर एक भी यूज़र कोई चेंज करता है डेटाबेस में या फिर कुछ भी ऑपरेशन होता है, तो वो सभी यूज़र्स के लिए तुरंत के तुरंत रिफ्लेक्ट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रियल टाइम सर्वर। नाउ अब मैं क्या करूँगा, एक नया यूज़र रजिस्टर कर लेता हूँ, and email address something this, password, okay, I think I have already logged in with this email. Okay, so अगर मैं इधर मैसेज भेजता हूँ हेलो का, and I can also send the emojis, suppose just send this emojis, and ये मैसेज तुरंत मेरे दूसरे वाले जो है दूसरा वाला जो अकाउंट है वो उस पर भी शो होगा, एज यू कैन सी दिस नोटिफिकेशन। सो ये वाला मैसेज मेरे दूसरे वाले अकाउंट पर भी शो हो रहा है। तो ये सब कुछ एकदम रियल टाइम में हो रहा है, और ये सब कुछ हम रिएक्ट की हेल्प से। और रिएक्ट में एक होता है स्टेट मैनेजमेंट, मतलब एक रिडक्स होती है जो सारी के सारी स्टेट्स को मैनेज करती है। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ बार बार हम डेटाबेस से फैच कर रहे हैं। मैंने बस जब लॉगिन किया और मेरा पेज रिलोड हुआ, बस तब मैंने उसे डेटाबेस से लोड किया, बस उसके बाद मैं डेटाबेस से कुछ नहीं लेता। सब कुछ अब मेरे ब्राउज़र में है। अब मेरे को डेटाबेस में बार बार फैच करने की ज़रूरत नहीं है। इससे चीज़ें क्या होती हैं, काफ़ी फास्ट हो जाती हैं। दैट्स वाई रिएक्ट इज़ a bit faster and more interactive than other website. So this is all about the MERN stack. Okay, so this session is divided into three parts. So 4 hours में हम सबसे पहले रिएक्ट हो गया, और एक 4 hours वाला सेशन होगा वो होगा पूरा बैक एंड ओरिएंटेड, और लास्ट के 2 hours हम रखेंगे डाउट के लिए। तो पहले 4 hours में हम सिंपली क्या करेंगे कि हम रिएक्ट को समझेंगे, मतलब रिएक्ट काम कैसे करता है, विच वाई दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एस टी एम एल, लाइक बेसिक एस टी एम एल सी एस एस से रिएक्ट डिफरेंट कैसे है। और रिएक्ट का एडवांटेज क्या होगा, चाहे टोल्ड यू कि इसको कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट देखेंगे इसका। इसको हम सिंपली सबसे पहले हम डायरेक्ट इस पर नहीं पहुंचेंगे, पहले एक बेसिक सा स्ट्रक्चर तैयार करके देंगे, बेसिक रेंडर करके देखेंगे। फिर हम इसमें रिडक्स इंटीग्रेट करेंगे। रिडक्स इज वेरी मच पॉपुलर स्टेट मैनेजर। तो इसमें क्या होता है, वो सिंपली स्टेट को मैनेज करता है। सिमेंटिक यूआई देखेंगे, जैसे एज आई हैव टोल्ड यू बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप तो हमारा नॉर्मल हम एच टी एम एल सी एस एस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअली रिएक्ट में बूटस्ट्रैप है। लेकिन हम रिएक्ट में इतना बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं करते, वी विल यूज़ मटेरियल यूआई और सिमेंटिक यूआई। तो दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क फॉर डिजाइनिंग ऑफ अ वेबसाइट। तो सिमेंटिक यूआई यूज़ करने वाले हैं हम, हुक्स यूज़ करने वाले हैं। हुक्स इज़ अ वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ रिएक्ट। इसमें हम कैसे, मतलब स्टेट को कैसे मैनेज करते हैं, जैसे कि मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, तो उससे एक्चुअली हम उसको एट द टाइम हम उसे वो कर सकते हैं। जैसे कि जब भी हम, जैसे कोई वेबसाइट है उसमें हम फॉर्म भरने जाते हैं और उसमें रियल टाइम में हम कुछ भी डालते हैं, तो हमें सीधे बता देता है कि जो हमारा पासवर्ड है वो मैच हुआ या नहीं हुआ, पासवर्ड में इतने कैरेक्टर हैं या नहीं है। तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट से भी हैंडल हो सकता है, लेकिन रिएक्ट इसको हुक की हेल्प से काफ़ी इजीली हैंडल कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट हुक्स। इसके बाद हम देखेंगे इमोट्स वाला पार्ट। इमोट्स मतलब इसका बेसिक ओरिएंटेड ये होगा कि हम एपीआईज को, मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कैसे करें अपने रिएक्ट में। नॉट, दिस इज नॉट अबाउट द इमोट्स। मतलब अगर कोई भी और लाइब्रेरी हो जिसको हमें अपने रिएक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो वो कैसे करेंगे। यस, this this Slack clone which I have showed you, this one. So this is our final project that we will build after our session.
there are lots of almost feature of the chat application we have in this. So इसके अंदर हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, वी कैन अपलोड मीडिया, वी कैन अपलोड इमेजेस। अभी सिंपली हमने इसको इमेजेस के लिए रखा है क्योंकि इसमें बेसिकली डेटाबेस का थोड़ा इशू होता है, क्योंकि हम उसमें ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते, तो केवल इमेजेस स्टोर कर रहे हैं। वी कैन ऑल्सो सेंड द PDF इफ़ यू वांट। तो हम अभी इसमें इमेजेस सेंड कर सकते हैं। वी कैन लॉग इन एंड लॉग आउट, रजिस्टर कर सकते हैं, पूरा ऑथेंटिकेशन, रियल टाइम ऑथेंटिकेशन जो होता है उस तरीके से। इसमें नए जो चैनल्स हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं, और रियल टाइम में मतलब अगर मैं कोई मैसेज भेजता हूँ, सपोज इफ आई सेंड अ हाई मैसेज, तो वो एट द सेम टाइम मेरे दूसरे वाले यूज़र को भी शो होगा। सो yes, you can submit if you are creating by your own, then you can submit. This is of a 10-hour course. So basically 4 hour are divided for Node and 4 hour divided for React and 2 hour for doubt session. That will happen after uh, some gap of some days. After some days, we will have held a doubt session. So in that session, you can ask the doubt if you have any, and we will provide the tutorial video, and for the WhatsApp, and we will provide the support session on WhatsApp, so you can ask any query on WhatsApp too.